Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today I discuss the trigonometric equation. Now cos theta equal to cos alpha. In the previous classes, we will discuss the sin theta equal to sin alpha, sin theta equal to 0, cos theta equal to cos 0, and so on. So now today, cos theta equal to cos alpha. Cos theta equal to cos alpha. Cos theta equal to cos alpha and theta equal to 2n pi plus minus alpha and theta equal to 2n pi plus minus alpha n equal to z, n equal to z, n की वैल्यू जो है वो z से आएगी. अब देखो cos थीटा इक्वल टू cos alpha. Now cos थीटा माइनस cos alpha इक्वल टू 0. देखो यहाँ से हम cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा अगर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगी. अब इस कंडीशन को हम कैसे फाइंड करेंगे कि cos अल्फ़ा को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, cos थीटा माइनस cos अल्फ़ा आएगा. Now apply the formula of cos c minus cos d. Apply the formula of cos c minus cos d. So 2 sin minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So minus 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2. नाउ वी अप्लाई द फार्मूला cos c minus cos d, that's equal to minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2, that's equal to 0. Now therefore sin theta plus alpha by 2 equal to 0 or sin theta minus alpha by 2 equal to 0. So theta plus alpha by 2 equal to n pi or theta minus alpha by 2 equal to n pi and theta plus alpha equal to 2n pi or theta minus alpha equal to 2n pi. So theta equal to 2n pi minus alpha or theta equal to 2n pi plus alpha. So therefore theta equal to 2n pi plus minus alpha for every n belongs to z. For every n belongs to z. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर ये साइन माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये इक्वल टू 0 है. ये इक्वल टू क्या है? ये इक्वल टू 0. अब यहाँ से साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 भी 0 होगा और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 भी 0 होगा. तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई. सो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है 2n पाई माइनस अल्फा.
सेकेंड स्टेप में थीटा माइनस अल्फा बाई टू, थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू एन पाई, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर एक साथ लिखा जाए तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नाउ क्लियर? tan theta equal to tan alpha, tan theta equal to tan alpha, tan theta equal to tan alpha and theta equal to n pi plus alpha, theta equal to n pi plus alpha। क्लियर? यहाँ से tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है। उस कंडीशन में हम tan को sin अपॉन कॉस में चेंज करेंगे। tan जो है वो sin अपॉन कॉस में चेंज हो जाएगा। ये sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये sin अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, sin theta upon cos theta and sin alpha upon cos alpha। Clear? Now we cross multiply to get the sin theta into cos alpha and cos theta into sin alpha। So cross multiply sin theta cos alpha equal to cos theta sin alpha and sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha equal to 0। So that's equal to sin theta minus alpha equal to 0। Sin theta minus sin alpha, sin theta minus alpha, this is the formula of sin A minus B। So theta minus alpha equal to n pi and theta equal to n pi plus alpha। This is the solution of trigonometric equation of tan theta equal to tan alpha। Now it is clear? Next process, sin square x equal to sin square alpha, sin square x is equal to sin square alpha, sin square x is equal to sin square alpha, sin square x is equal to sin square alpha। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये अभी तक तो हम सिंगल पावर की वैल्यू ले रहे थे, अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी है, इधर भी साइन स्क्वायर है और इधर भी साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको चेंज कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x/2
1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2 से 2 कट गया, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2 अल्फा, 1 से 1 कट गया, cos 2x इक्वल टू cos 2 अल्फा। यानी हमने इसे फार्मूले के रूप में चेंज कर लिया और चेंज करने के साथ हमारा कंडीशन आ गया cos 2x इक्वल टू cos 2 अल्फा, cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, और cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा एंड x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर अल्फा। Now similarly we will find the value of cos square x, cos square x equal to cos square alpha, cos square x is equal to cos square x equal to cos square alpha. Now add the formula 1 plus cos 2 alpha, cos 2x by 2 and 1 plus cos 2 alpha by 2, 2 cancel, 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2 alpha, 1 cancel and cos 2x is equal to cos 2 alpha। यहाँ पर ये कंडीशन है कि हमें cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर अल्फा दिया गया, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर अल्फा दिया गया। हमने इस cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपान 2 और 1 प्लस cos 2 अल्फा अपान 2 के फार्मूले में चेंज कर लिया। अब यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिला cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, और इसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा एंड x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। अब देखो, अब हम साइन tan अल्फा की बात करते हैं। tan स्क्वायर अल्फा की कंडीशन में क्या होगा? tan स्क्वायर अल्फा की कंडीशन में क्या होगा? देखो, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर we change the value of tan into the sin and cos, into the sin and cos। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को साइन कास में चेंज करें? नो। नाउ चेंज द फार्मूला into the cos 2 अल्फा, cos 2 यानी 1 माइनस cos 2x
अपॉन 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x एंड 1 माइनस cos 2 अल्फा upon 1 plus cos 2 alpha. Up now we use the condition if one is added to both sides one is added to both sides, so 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x plus 1 and 1 minus cos 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha plus 1 and simplify that 1 minus cos 2x plus 1 plus cos 2x upon 1 plus cos 2x, that's equal to 1 minus cos 2 alpha plus 1 plus cos 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha. Cos 2 alpha cancel, cos x cancel, that's equal to 2 upon 1 plus cos 2x is equal to 2 upon 1 plus cos 2 alpha and 2 cancel. Now we cross multiply and we get 1 plus cos 2 alpha equal to 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x. So cos 2x is equal to cos 2 alpha and 2x is equal to 2n pi plus minus alpha and x is equal to n pi plus minus alpha. This is the general solution of trigonometric equation of x is equal to n pi plus minus alpha. देखो क्या है, हमें tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है. जनरली जो प्रॉब्लम आएगी हम इसे साइन क्लास में बदलेंगे, लेकिन साइन क्लास में बदलने से क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अतः आप क्या करेंगे कि इस फार्मूले में आप इसके सोल्यूशन को क्वेश्चन को बदलेंगे. cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा. वन माइनस cos 2 थीटा. आप उस tan को उस फार्मूले में बदलेंगे. cos 2 थीटा और cos 2 थीटा से आप क्या फाइंड करेंगे, tan स्क्वायर थीटा. हमने यहाँ पर इस tan स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा और 1 प्लस cos 2 अल्फा में चेंज कर दिया. अब देखो चेंज करने के बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत होगा क्योंकि हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और हमें वैल्यू को डिप्रिशिएट करना है, कम करना है. तो हम क्या करें, इन दोनों साइड में 1 को ऐड करें. अगर दोनों साइड में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे न्यूमरेटर छोटे हो गए
और न्यूमरेटर हमारा क्या आ गया 2/1 प्लस cos 2x, 2/1 प्लस cos 2x, ठीक है, और 2/1 प्लस cos 2 अल्फा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू निकल गई cos 2x इक्वल टू cos 2 अल्फा, और यहाँ से x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? ओके, थैंक यू।